Welcome to I'll Sleep. Today I'm gonna share a cue card called Describe an Unpleasant Job You Did. What was the job? When you did it? Why did you find it unpleasant? How you felt about it? But before that, I would like to draw your attention to us three different criteria called grammatical range and accuracy, which would be in green color, and lexical resources, or I would say the vocabulary, it would be in blue color, and the last one is fluency and coherency that you will find in red color. Now, I will start my cue card by saying this. Well, finding a job that makes us feel satisfied and successful isn't a piece of cake. Even this is something that is not taught us in school. And today, as you have asked me about the job I was unhappy with, I would say the worst job experience that I had was when I started working as a library page in my locality. Actually, what made it a nightmare for me was my fussy boss. I had completed my senior secondary school at that time and was searching for some sort of job that could help me arranging my college fee, accommodation charges, and all. Because I decided to join my university course next year and I wanted to earn my own money. One day, I saw this part time library paid job advertised in the newspaper. I loved reading books and I thought that working at the library would be a good option. So I jumped at it. I went for the interview and I was hired for this job position. I had pretty basic duties shelving books, checking in and checking out books, helping patrons find a book, and making copies. Initially, for first 2 days, everything and everyone seemed nice, but gradually things started changing. The library branch I was assigned to was run by a librarian who was very dominant and discontented. Every single time he used to find faults in my task. I'm a kind of person who is adaptable and do not lose temper easily, but eventually I ran out of patience when he said I had not shelved the books properly, though I did so, and asked me to go around the entire library for matching the spines of the books to the edges of the shelves. And I did that. I kept complaining my father and wanting to quit, but he said that it was a good practice to deal with bad situations in real world. So I really tried. I was never a minute late to work, but he never appreciated my work. Anyway, I worked there for 2 months and then switched to another job in a local bank as an intern, which was better than that. Now, let me explain this cue card in Hindi so you can easily get the meaning of different words here, right? तो यहाँ पे मैंने कहा है कि ऐसी जॉब ढूंढना जो कि हमें सेटिस्फाई कर पाए और जो सक्सेसफुल भी हो मीन्स जिससे हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हों और वो चीज़ सक्सेसफुल भी हो वो इजी नहीं है यहाँ पे इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक का मतलब है इज़ नॉट इजी टास्क ओके सो पीस ऑफ केक एक ईडियम है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है आप कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको कहना हो लाइक अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करने में आसान है तो आप कह सकते हो दिस इज़ अ पीस ऑफ केक और अगर नहीं है तो आप कह सकते हो दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक और ये वो चीज़ है जो हमें स्कूल्स में भी नहीं सिखाई जाती है, राइट? तो जैसा कि आज आपने पूछा है एक जॉब के बारे में जिससे मैं अनहैप्पी थी, तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्स्ट का मतलब है बहुत ही बुरा, ओके? सो जो बहुत ही बुरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है, वो तब था जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ लाइब्रेरी पेज जब मैंने एज़ अ लाइब्रेरी पेज काम करना शुरू किया था। अब लाइब्रेरी पेज क्या है यहाँ पे? इट्स अ पोस्ट नेम, ओके? ये एक पोज़ीशन जॉब पोज़ीशन का नाम है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं एक लाइब्रेरी असिस्टेंट जिसका काम होता है कुछ बेसिक टास्क करना है ये एक एंट्री लेवल जॉब होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन या कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती राइट एक्चुअली इस चीज़ को किसने नाइटमेयर बनाया था मेरे लिए वो था मेरा फसी बॉस अब यहाँ पे नाइटमेयर क्या है नाइटमेयर हम यूज़ कर रहे हैं अनप्लेजेंट के लिए नाइटमेयर होता है बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उसके लिए हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है नाइटमेयर ओके एंड फसी बॉस फसी हम पहले भी क्यूकर्स में यूज़ कर चुके हैं फसी का मतलब होता है बहुत ही चूजी मतलब जिसके बड़े नखरे होते हैं तो नखरे वाला बॉस सो यू कैन से द फसी बॉस राइट मैंने उस टाइम अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया था मीन्स मैंने 12th पास की थी और मैं कुछ जॉब ढूंढ रही थी कोई भी जॉब सॉर्ट ऑफ जॉब का यहाँ पे मतलब है किसी भी तरीके की जॉब ओके
जो कि मुझे हेल्प कर पाए मेरी कॉलेज फी को अरेंज करने में। और यहाँ पे अकोमोडेशन चार्जेस का मतलब है रहने खाने का जो भी खर्चा होता है, राइट। अगर आप मान लो हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं और आपको हॉस्टल में रहना पड़े या रेंट पे किसी अपार्टमेंट में रहना पड़े, राइट, तो उसके लिए जो खर्चा होगा उसे हम कह रहे हैं अकोमोडेशन चार्जेस। ओके, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना यूनिवर्सिटी कोर्स नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइन करूंगी और आई वांटेड टू अर्न माय ओन मनी, मैं अपना पैसा ही कमाना चाहती थी। ओके, तो एक दिन मैंने ये पार्ट टाइम लाइब्रेरी जॉब देखी जो न्यूज़पेपर में जिसकी एडवर्टीजमेंट हुई थी। और आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लाइब्रेरी में काम करूंगी तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये सारी की सारी आपकी ग्रामर है, और इसको ध्यान से देखें कि हमने कैसे यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। हर जगह सिर्फ एक ही सिंपल पास्ट का यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने वुड भी यूज किया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब वो पास्ट में बात करते हैं तो आगे वाले सेंटेंस को वो विल में ले लेते हैं, जैसे आई थॉट दैट वर्किंग एट द लाइब्रेरी विल बी अ गुड ऑप्शन। बट यहाँ पे विल जो है वो रॉन्ग है। आप विल यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप इससे पहले क्या कर रहे हैं, आप इससे पहले थॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स आप पास्ट की बात कर रहे हो। जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप विल यूज नहीं कर सकते, तो विल की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो आई जम्प्ड एट इट, मीन्स मैंने ईगरली उसे एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स बिना सोचे समझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। मैं इंटरव्यू के लिए गई और मुझे उस जॉब पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया। यहाँ पे हायर का मतलब है कि मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मेरी बहुत ही बेसिक ड्यूटीज थी, प्रीटी मतलब काफी काफी बेसिक ड्यूटीज थी। बेसिक मतलब कि बहुत ही सिंपल सी ड्यूटीज थी, राइट। जैसे शेल्विंग बुक्स, बुक्स को अरेंज करना शेल्फ के ऊपर, राइट। और चेकिंग इन एंड चेकिंग आउट बुक्स। यहाँ पे चेकिंग इन और चेकिंग आउट का मतलब क्या है। चेकिंग इन है जब आप, जैसे मान लीजिए जो भी मेंबर है, जो भी पेट्रन है, जब वो आपको बुक रिटर्न कर रहा है तो वो चेकिंग इन हो रही है, ठीक है, ताकि ये वाली बुक किसी दूसरे और पर्सन को अवेलेबल हो सके और वो उसको इशू करा सके। और चेकिंग आउट क्या है कि जब सपोज कि आप कोई बुक इशू करवा रहे हैं लाइब्रेरी से, तो आप, दैट इज कॉल्ड चेकिंग आउट। तो ये चेकिंग इन एंड चेकिंग आउट का मतलब ये हुआ कि आप डेस्क पर हैं और जितने भी लोग बुक्स रिटर्न करने आ रहे हैं, जितने भी लोग बुक्स इशू करवाने आ रहे हैं, इन दोनों का काम आप ही देख रहे हो। गॉट इट। तो ये मेरी बेसिक ड्यूटीज थी। और हेल्पिंग पेट्रन्स फाइंड अ बुक मीन्स जो पेट्रन्स, अब पेट्रन्स क्या होते हैं, रेगुलर मेंबर्स, जो लाइब्रेरी के रेगुलर मेंबर्स होते हैं, जो रेगुलर लाइब्रेरी में आते हैं और बैठ के वहां पे पढ़ते हैं या वहां से बुक्स इशू करवाते हैं, उन्हें हम पेट्रन्स कहते हैं, राइट। तो उनको मैं हेल्प करती थी। और मेकिंग कॉपीज मीन्स जैसे कभी जरूरत पड़ी किसी भी डॉक्यूमेंट की तो उसकी फोटो कॉपीज करना, तो वो फोटो कॉपीज का काम मेरा था। तो ये सब बेसिक ड्यूटीज थी मेरी वहां पे। ओके, तो स्टार्टिंग में इनिशियली फर्स्ट 2 days मुझे सारा कुछ और सारे लोग सही लगे, सीम्ड मतलब लगे, ओके। बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, चीजें चेंज होना शुरू हो गई। जो लाइब्रेरी ब्रांच मुझे असाइन की गई थी, यहाँ पे असाइन का मतलब है कि जहाँ पे मुझे काम करना था, ओके, जहाँ पे मुझे ये सारे टास्क कंप्लीट करने थे, वो एक लाइब्रेरियन रन कर रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट और डिसकंटेंटेड था। यहाँ पे डोमिनेंट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा बॉसी, लाइक जिस, जो अपनी ही सिर्फ चलाता है, ओके, जो चाहता है कि सिर्फ मेरी ही चले, जो मैंने किया है उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसी काम को किया जाए, वैसा ही किया जाए जैसा मैंने कहा है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। एंड डिसकंटेंटेड होता है कि जो किसी के काम से खुश ही ना हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन फिर भी वो आपके काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा, ओके, और वो सेटिस्फाई नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डिसकंटेंटेड। एवरी सिंगल टाइम यहाँ पे मतलब कि हर वक्त, एवरी सिंगल टाइम आप यूज कर सकते हैं हर वक्त के लिए। ही यूज टू फाइंड, वो मेरी टास्क में, मेरे काम में गलतियां ही गिनाता रहता था। यहाँ पे हमने यूज किया है यूज्ड टू फाइंड। यहाँ पे यूज्ड टू जो है, मैंने यहाँ पे फाउंड नहीं यूज किया, ही फाउंड फॉल्ट्स। अगर मैं फाउंड यूज करती तो ऐसा लगता है कि उसने एक ही बार मेरे टास्क में गलतियां निकाली, ओके। बट वो ऐसा किया करता था, वो रेगुलर ऐसा करता था। तो जब भी आप कोई टास्क को पास्ट में शो करते हैं, मीन्स पास्ट में आपको बताना है कि हम ऐसा किया करते थे या वो ऐसा करता था, फिर हम यूज टू यूज करते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया फाइंड, ओके। तो ही यूज्ड टू, वो ऐसा किया करता था, उसका रेगुलर का ये काम था। और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज अडेप्टेबल। जो अडेप्टेबल वो होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाए, ओके। और
मैं जल्दी अपना टेम्पर लूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे लूज टेम्पर का मतलब है अपना आपा खोना, लाइक जल्दी से अग्रेसिव हो जाना या ऐसा कुछ। ओके, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। बट आखिरकार इवेंचुअली, मतलब आखिरकार आई रेन आउट ऑफ पेशेंस। मेरे सब्र का बांध टूट गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट गया। तो हम जब हिंदी में ऐसा बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं रेन आउट ऑफ पेशेंस व्हेन ही सेड, जब उसने कहा आई हैड नॉट शेल्व द बुक्स प्रॉपरली, कि मैंने जो बुक्स है वो अच्छे से शेल्व नहीं की हैं। ओके, मीन्स अच्छे से शेल्फ पे अरेंज नहीं की हैं। जबकि मैंने ऐसा किया था, दो आई डिड इट सो, दो यहाँ पे हमने कहा जबकि ऐसा मैंने किया था, इट मीन्स मैंने प्रॉपरली रखी थी, बट उसने फिर भी उसमें कमी निकाली कि मैंने अच्छे से प्रॉपरली शेल्व नहीं की है। और मुझे कहा कि मैं पूरी इंटायर लाइब्रेरी में जाऊं और जितनी भी वहां पे बुक्स हैं, सारी बुक्स की जो स्पाइंस हैं, उनको शेल्व्स जो है हमारी, उनकी एजेस से मिला दूं। अब यहाँ पे स्पाइंस का मतलब क्या होता है? स्पाइन होता है बुक का आउटर कवर, राइट? जो आउटर एज होती है, जो बाहरी किनारा होता है जहां पे आपके पेजेस जुड़े होते हैं, लाइक दिस। तो ये हमारी क्या होती है? स्पाइन होती है। तो मुझे ये सारी स्पाइंस जो थी वो शेल्व की एज, जो किनारे थे, उनके साथ अच्छे से फिक्स करनी थी, मैच करनी थी, अरेंज करनी थी। ओके, एंड आई डिड दैट, मैंने वैसा किया। आई केप्ट कंप्लेनिंग माई फादर, मैं अपने पापा को कंप्लेन करती रही और मैं इस जॉब को क्विट करना चाहती थी। यहाँ पे क्विट का मतलब है कि मैं इसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ये सीखने के लिए कि आप रियल वर्ल्ड में बैड सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैंने उनकी बात मानी, इट मीन्स, और मैंने बहुत ट्राई किया। मैं कभी भी अपने काम के लिए एक मिनट भी लेट नहीं हुई, बट उसने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। एनीवे, यहाँ पे एनीवे मैंने यूज किया है क्योंकि अब मैं इस बात को थोड़ा सा पलट रही हूँ। पलट कैसे रही हूँ कि ये जो बात हो गई सो हो गई, बात गई सो बात गई, हम ऐसे बोलते हैं, बट आगे की जो बात है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि एनीवे आई वर्क देयर फॉर 2 मंथ्स। मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया और उसके बाद मैंने दूसरी जॉब के लिए स्विच कर दिया। अब स्विच टू अनदर जॉब का मतलब है कि मैंने दूसरी जॉब पकड़ ली। ओके, दूसरी जॉब ले ली जो कि एक लोकल बैंक में थी एज एन इंटर्न। इंटर्न का मतलब होता है जो किसी के अंडर सीखता हो। जैसे पहले भी अगर मैं लाइब्रेरियन के नीचे काम कर रही थी तो इट मीन्स कि मैं इंटर्न ही थी, तो मैं चीज़ें सीख भी रही थी और मुझे एक इनकम भी मिल रही थी, बट वो इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट या आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। एनीवे, आपको अब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि एनीवे हमने क्यों यूज़ किया। सी, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप फिलर्स यूज़ कर रहे हैं या जब भी आप कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, उनका सही सही यूज़ करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है। और अगर आप इनको गलत जगह पे फिक्स कर देते हैं तो ये फ्लुएंसी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। Okay, now the explanation is done. I'll meet you in my next video with new cue card. Till then, keep learning, keep speaking.